हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। So start the session. आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। I'll just share the screen. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचार, यमुना तीरा वनचार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे धीरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम क्या राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और धीरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। हरिनाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। तो मेरी बात बता रही है आप लोग। ऐसा ते विहिता सांख्ये ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु। बुद्धिर्योगे योगे दिवां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्म कर्मबन्धं प्रहस्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते ऐसा विहिता ते सांख्ये विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु। बुद्धियोगे मां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्म कर्मबन्धं प्रहस्यसि। एषा ते विहितः सांख्ये ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु। बुद्धियोगे तिमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ बुद्धया बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहस्यसि। आप में से एक एक करके लोग आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। एषा ते विहितां सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमो शृणु। नहीं, आप ऐसा पढ़िए ताकि आपके साथ लोग फॉलो कर सकें। तो एक एक जी। पढ़िए आप। एषा ते विहितां सांख्ये ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमं शृणु। बुद्धिर्योगे तिमां शृणु। बुद्धया बुद्धियोगे तिमां शृणु। कर्मबन्धनं ऐसा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धियोगे तिमां शृणु। बुद्धियोगे त्वां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धनं प्रहास्यसि। बंधन प्रयाससी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा ऐसा यह सब यह शब्द तेरे लिए तेरे लिए अभिहितः अभिहिता वर्णन किया गया वर्णन किया गया सांख्ये वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि बुद्धि योगे निष्काम कर्म में निष्काम कर्म में तू लेकिन इमाम इसे सुनो बुद्धया बुद्धि से युक्तः साथ जिससे पार्थ हे पृथापुत्र
हे पृथा पुत्र कर्म बंधनम कर्म बंधनम कर्म के बंधन से कर्म के प्रहास्यसि मुक्त हो जाओगे। मुक्त हो जाओगे। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिवपाद की जय। जय। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। मेरे साथ बोलिए, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। उसे सुनो। सबसे हाँ। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से हे पृथा पुत्र यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो आप लोग अब सभी लोग अपने को म्यूट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा तात्पर्य बहुत प्रभुपाद जी ने इसका, क्योंकि एक जंक्शन है श्लोक जो आप देखेंगे भगवान सांख्य योग के बारे में काफी बता चुके हैं, अभी बुद्ध योग के बारे में बता रहे हैं। तो ये श्लोक जंक्शन है, मतलब इनसे शुरू हो रहा है बुद्ध योग का चर्चा। बुद्ध योग के बारे में हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया है बुद्ध योग, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और अपने कैसे हम उसको अपने जीवन में जोड़ सकें और कर सकें, प्रैक्टिस कैसे कर सकें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है बुद्ध योग का मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे और हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। और तो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों स्वजनों को ना मार कर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में प्राणी इस रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। तो यहाँ तक मैं पढ़ूंगा और फिर इसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रोष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हो जी। हरे कृष्ण माता जी। सो हम लोग प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं इस श्लोक में कि जो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो जो फोकस है, हमारा फोकस इसमें है आज का बुद्ध योग पर। तो प्रभुपाद लेकिन श्लोक को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बता रहे हैं इंद्रिय तृप्ति, मतलब कैसे जो अर्जुन का जो फोकस था वो डिसीजन लेने का कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसका आधार क्या था? इंद्रिय तृप्ति। देखा जाए तो हम सबका, हम इतना हार्ड कोड है, जैसे हार्ड वायर्ड होता है ना, बोलते हैं ही इज हार्ड वायर्ड, तो वैसे हम सब हार्ड वायर्ड हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। एंड वही हमारे बंधन का कारण है। एक इसमें मैं आपको शेयर करूंगा, बड़ा सुंदर इसमें बताया गया है। जस्ट मैं आपको बताता हूँ क्योंकि तो लेट मी शेयर। एक इंद्रिय तृप्ति पे है, इसको मैं पढ़ता हूँ। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाश्यते माया तारे झपटिया धरे। ये एक बंगाली वर्स है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। सो हम सब कृष्ण को भूलना चाह रहे हैं, भूल के क्या कर रहे हैं? भोग वांछा कर रहे हैं। जैसे इसको इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या होता है? जैसे आप सरकार की प्रॉपर्टी को यूज करें और सरकार के लिए नहीं, अपने लिए, तो ये इसको बोला जाएगा कि, तो इसको सरकार की नजर में आप क्या हो गए? यू आर आप दोषी हैं। और आपको तुरंत, जैसे तुरंत क्या होगा? आपको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे ट्रैफिक में आप थोड़ा सा सिग्नल आपने ब्रेक किया, तुरंत आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी। तो ये कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। तो जैसे ही हम भगवान को भूल जाते हैं कि वो वही हमारे असली, वॉट एवर वी आर डूइंग, जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए है, भगवान के इंजॉयमेंट के लिए है। और हमारा इंजॉयमेंट उनसे सेपरेट नहीं है। जैसे ही भूलते हैं हम और सोचते नहीं मैं अपना स्वयं का करूंगा, तो क्या है? पाश्यते मायाधारे झपटिया धरे। इमीडिएटली हम माया हमको पकड़ धर दबोचती है। और हम लोग क्या करते हैं? हमें माया झपट, और हम लोग मतलब इसीलिए देखेंगे हम लोग उसको सोचते हैं बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है। हम लोग ऐसी स्थिति है हमारी, मानो जैसे तो माया हमको गोद में लेकर बैठी हुई है और हर क्षण थोड़ी थोड़ी देर में तमाचा दे रही है। एंड वी आर थिंकिंग, ओ आई एम इन वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम भोग वांछा जो है ना उसको समझें। तो इस भौतिक, एक्चुअली भौतिक जो हमारा अस्तित्व है उसका फाउंडेशन यही है कि हम इंद्रिय तृप्ति करने आए, इंद्रिय तृप्ति। तो इसीलिए हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा हार्डवायर्ड है। जैसे भगवान ने गीता में जो ये अलग कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, अलग अलग स्तर, आज जो हम बुद्धि योग बात कर रहे हैं, तो अलग अलग योग एक्चुअली वो इसी स्तर पर हैं कि हम कितना ज्यादा अपने को डिटैच कर रहे हैं इस इंद्रिय तृप्ति से। और अलग अलग स्तर है। जैसे कर्म कांड जो सेक्शन है आप देखेंगे, पूरा जो वेदों का मेजर जो डिपार्टमेंट है वो कर्म कांड है। तो कर्म कांड में क्या करते हैं हम बोलते हैं हम कुछ करेंगे कर्म और उससे जो रिजल्ट आएगा उसको भोग करेंगे। तो हम कुछ धार्मिक कार्य करते हैं ताकि हमको भोग कर सकें। तो धर्म हम करते हैं ताकि हमें अर्थ मिले, और अर्थ धन मिलता है तो हम बोलते हैं काम, हम अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं।
तो इसीलिए ये जो सेक्शन है ज्यादातर आप देखेंगे इसीलिए कर्मकांड ही भरा पड़ा है हमारे वेदों में। फिर थोड़ा पोर्शन ज्ञान कांड है, फिर उससे और उपासना कांड बहुत बहुत ही छोटा सेक्शन है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, और इसीलिए इन सबको ऐसे बताया जाता है, जैसे कर्मकांड को जो कंपेयर किया जाता है तो उसकी तुलना की जाती है ऐसे, जैसे क्योंकि आप उस थोड़े से सुख के लिए इतना एफर्ट मारते हैं ना, इतना एफर्ट जो, और आप देखेंगे एफर्ट मारने के बाद भी कभी कभी नहीं होगा। जैसे इसको तुलना किया गया है, जैसे आपको पानी चाहिए और आपने कुआं खोदा, और कुआं खोदना कितना मुश्किल है, पीने के लिए पानी चाहिए और आपने कुआं खोदा है, और कुआं खोदते समय हो सकता है आपने खोदा और उसमें गिर भी सकते हैं, और आपकी जो हो सकता है आप ना गिरें तो बाल्टी गिर सकती है, रस्सी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम आगे बात करेंगे अभी बुद्धि योग, वो ऐसा है मानो जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप पानी जलाशय से पी रहे हैं, आप जलाशय में आपको कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा है ये। और कर्मकांड में थोड़ा सा भी इतना रिस्क होता है ना, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो यू हैव टू फेस द रिपरकशन, आपको तुरंत दंड मिलेगा। और ऐसा हमने बहुत भागवतम में बहुत स्टोरीज हैं, थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो दंड मिलता है। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति पर जो हम जीवन जी रहे हैं, हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं ना कि ओ आई एम वेरी सेल्फिश। सेल्फिश है नहीं हम। सेल्फिश होते तो हम अपने आप को पहले जानते, वो अपने सेल्फ को जानते हैं ना, तभी तो सेल्फिश होंगे ना हम। तो इसीलिए इंद्रिय तृप्ति का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब हम ये जान रहे हैं कि मैं शरीर हूं, और इसी चेतना से हम अपना जीवन जिए जा रहे हैं। तो दिस इज, तो शरीर समझकर अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, दैट मीन्स इंद्रिय तृप्ति, बस। तो अर्जुन ये सोच रहे थे कि ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, अर्जुन ये सोच रहे थे कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे सब रिश्तेदार और जो परिजन है सब बच जाएंगे, तो उनके जो मरने का जो शोक है वो मुझे नहीं लेना पड़ेगा, तो मैं, और भले ही मैं उधर चला जाऊं, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो फाउंडेशन था वो इंद्रिय तृप्ति है। तो इसीलिए हम किसी से भी मिलते हैं, कोई भी हम मतलब कोई भी, अगर आप देखिए दो कंपनी आपस में जुड़ते हैं, उसका भी फाउंडेशन इंद्रिय तृप्ति है। दो इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं, उनका भी फाउंडेशन इंद्रिय तृप्ति है। तो देश मिले हैं, समाज मिलते हैं, सबका फाउंडेशन इंद्रिय तृप्ति है। कोई भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, सबका आधार इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि और वो नहीं होगा तो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगा उसका। तो हर व्यक्ति, यहाँ तक कि जो रिश्ते हैं हमारे, उसका भी आधार इंद्रिय तृप्ति है। हाँ, अगर, और इसीलिए क्या होता है, शुरू में हम सब जैसे होता है ड्रीम लैंड में होते हैं, रिश्ते बनाने से पहले हम मूवीज में दिखाते हैं, सब एक ड्रीम में है कि अरे ऐसा होगा ऐसा होगा, हाँ। और जब वो, और इसीलिए आप देखेंगे शुरू में अगर एक लड़का एक लड़की मिलते हैं तो उनको लगता है अरे पूरी दुनिया भुला देंगे, लेकिन बाद में उल्टा स्थिति हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका फाउंडेशन इंद्रिय तृप्ति है, और जैसे ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति को बाधा उत्पन्न करता है, वो उसका दुश्मन हो जाता है। और यही आज देखेंगे, और इसीलिए बोला जाता है कोई भी कार्य इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, क्योंकि इंद्रियों का जो सुख है वो बहुत क्षणिक होता है। जैसे उसको ऐसे समझा जाता है, जैसे आप इचिंग हो रही है मान लीजिए आपको, तो आप बड़ा अच्छा लगता है खुजलाना, और लेकिन जैसे ही आपको खुजलाते खुजलाते ज़्यादा आनंद देने की सोचा तो फिर आपको घाव हो जाएगा। तो ये है इंद्रिय तृप्ति। कोई भी चीज़ इस संसार में आप अगर ज़्यादा करने, आपको चाहे कितना भी पसंद हो, आपने उसको एक्सेस किया तो आपको तुरंत उसको फेस करना पड़ेगा, रिपरकशन, आपको दंड मिलेगा। तो इंद्रिय तृप्ति, एक तो इसका जो अमाउंट है वो लिमिटेड होगा, बहुत क्षणिक होगा। तो इसीलिए ये, और सबसे बड़ी बात है बोला गया है वो कर्म बंधनम, बहुत, हम कोई भी कार्य करें
अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये कि कर्म बंधन उत्पन्न करेगा, तो दैट मीन्स हम एक्चुअली अभी हमारा जो स्टैंडर्ड है वो अभी जानवर चेतना से ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक और श्लोक दिखाता हूँ। जैसे मुझे इसको खोलने दीजिए। तो यहाँ पर एक है कि जो कुछ लोग जो बोलते हैं नहीं, प्रभुपाद इसके बोल रहे हैं, इसके इसी श्लोक के एक लेक्चर में प्रभुपाद बोलते हैं कि कुछ लोग होते हैं इस प्रवृत्ति के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्लोक है गीता का, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो ये जो कैटेगरी है, प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन है, दोज हु आर डिमोनियक डू नॉट नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, नीदर क्लीनलीनेस और प्रॉपर बिहेवियर नॉट ट्रुथ इज फाउंड इन देम। तो मानव जीवन अगर हमें मिला है और अगर हम ये विचार नहीं करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें स्टैंडर्ड सफाई के फॉलो करने चाहिए, क्या बिहेवियर हमारा होना चाहिए, सत्य का पालन करना है नहीं, ये सब जो डिटेल है अगर हमने नहीं जानने की कोशिश की है, तो ये जो कैटेगरी है उसको बोला जाता है दे आर विदुरा आशुर, आशुर प्रवृत्ति के हैं, आशुर प्रवृत्ति है। वी आर नॉट बेटर देन एक्चुअली आशुरस, बिकॉज क्योंकि वो जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो केयर नहीं करते, वी डोंट केयर, आई डोंट केयर एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड है, तो ये इसका मतलब इसलिए इसको बोला गया कर्म बंधनम। कर्म बंधन, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमारे जो एक्शंस हैं वो कर्म बंधन ना उत्पन्न करें। और इसीलिए जब हम कोई भी योगा प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले जो फाउंडेशन है उस योगा का कि आपको 4 नियम का पालन करना है। नहीं तो आप, जैसे होता है ना, आप अभी न्यूट्रल स्टेज में नहीं आ सकते हैं। आप योगा तो बात की, योगा की शुरुआत ही यही है कि आप फाउंडेशन, क्योंकि आप धर्म के जो 4 स्तंभ है उसका पालन करें। तो इसीलिए चाहे आप सांख्य योग है, जो आप भगवान जो भी बता रहे हैं, बुद्धि योग या कर्म योग, उसको अगर आपको पालन करना है तो आपका फाउंडेशन पहले स्ट्रांग होना चाहिए। आपको 4 नियम पालन करना चाहिए, सत्य, दया, तप और शौच। और इसीलिए जो शौच, जो क्लीनलीनेस है, ये आज हर चीज खत्म हो गया है, लोगों को बेसिक शिष्टाचार भी नहीं पता है, सब खत्म हो चुका है। तो इसीलिए हमें आज जो बचा हुआ है, सत्य थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी दया, तप और शौचा एकदम कलयुग में खत्म ही से हो गए। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे कि ऐसा अर्जुन को अगर ये नॉलेज हो गया तो क्या होगा उसका। प्रभुपाद लिखते हैं कि फिर, क्योंकि आत्मा तो अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को। और आगे प्रभुपाद तात्पर्य में एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं, जो मैं इसको पूरा डिटेल नहीं पढ़ूंगा, ये प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि जो सांख्य योग यहाँ पर डिस्कशन हुआ है वो कपिल, जो नास्तिक कपिल हैं, 2 तरह के कपिल का प्रभुपाद जिक्र करते हैं। तो एक कपिल हैं जो भागवतम में जिनका वर्णन देवहूति और भगवान कपिल के बारे में, तो बोलते हैं ये जो सांख्य योग की बात हो रही है एक्चुअली भक्ति योग है, ये नास्तिक विचारधारा का इसमें कुछ भी जिक्र नहीं है। तो आगे प्रभुपाद बोलते हैं अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धियोग या उन्हें बुद्धियोग या कर्मयोग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। तो बुद्धि योग को बहुत सिंपल तरीके से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बुद्धि योग क्या है, इन कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। तो भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करना, ये एक्चुअली बुद्धि योग है। और
और यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उस भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, आप सब इसको जानते भी हैं। तो क्या श्लोक है इसको मैं बता देता हूँ। तो ये तेषाम शतति युक्तानाम, ये बुद्धि योग का मैं आपको, इसको हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। तेषां शतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो यहाँ पर भी भगवान बोले बुद्धि योग, बोलते हैं अगर कोई मेरी सतत भजन करता है, सतत मेरे से जुड़ता है, तो बोलते हैं भगवान कह रहे हैं आई विल गिव यू इंटेलिजेंस, बुद्धि योग दूंगा, बुद्धि योग मैं दूंगा, मैं बुद्धि ऐसी दूंगा जिससे तुम्हारा मुझसे योग हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पर ये समझें। बुद्धि योग भगवान बार बार एक्चुअली गीता में बताते हैं, और इसीलिए प्रभुपाद जी कई जगह पर बताएं बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस, और फिर योग मतलब कुछ जो आपको जोड़ता हो। तो सीधा साधारण शब्दों में प्रभुपाद बोलते हैं when one tries to go back home, back to Godhead and takes fully to Krishna consciousness in devotion service, his action is called बुद्धि योग। आप कोई भी कार्य ऐसा करें जो आपको इस भव सागर से लेके, आपको इस संसार से लेके भगवान के धाम ले जाता है, तो वो एक्शन बुद्धि योग है। तो ये एक्चुअली बुद्धि योग है। और भी बोलते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं इन अदर वर्ड्स बुद्धि योगा इज द प्रोसेस by which one gets out of the entanglement of this material world. The ultimate goal of progress is Krishna. People don't know this. Therefore, the association of devotees and bona fide spiritual masters are important. So बुद्धि योगा, तो यहाँ पर बोला गया सतत युक्ता नाम, तेषाम सतत युक्ता नाम। तो जो लोग सतत युक्त रहते हैं भगवान की सेवा में, भजताम प्रीति पूर्वकम। और एक चीज क्या बोला गया है, जो प्रीति पूर्वकम, भगवान की प्रीति पूर्वक, विद लव एंड फेथ जो भगवान की सेवा करते हैं उनकी, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं उनको मैं बुद्धि योग दूंगा, मैं उनको बुद्धि दूंगा जिससे वो मेरे पास आ पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल। लोग सोचते हैं कि भगवान को हम अपनी इंटेलिजेंस से और भगवान को हम अपने प्रयास से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा बताया गया, भगवान बोल रहे हैं नहीं, मैं दूंगा बुद्धि, मैं बुद्धि योग दूंगा आपको। और लेकिन भगवान की रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि प्रभुपाद इसके बारे में बोलते भी हैं कि unless there is love you cannot do it nicely, any matter in the material world, unless you have got some attachment for something, cannot act very nicely। हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं अपने प्रयास, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उसमें बहुत ज़रूरत है कि हम उसमें उसको विद लव एंड डिवोशन करें। तो वो संभव है कृपा से। अदरवाइज जैसे हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ है, वो किसी गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा उनसे संपर्क नहीं है, अगर उनसे हमारा संपर्क टूट रहा है, तो हमारा आप देखेंगे कि जो अंदर से जो भावना है प्रैक्टिस करने की स्पिरिचुअलिटी, वो आप धीरे धीरे लूज कर जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परंपरा में ही होता है। तो हमें अगर हमारा कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ये इसीलिए बहुत बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं अब तो हमने सब सीख लिया है, हमको प्रोसेस तो पता चल गया है कि अब हमें सुबह उठना है और जप करना है, भागवतम पढ़ना है, ये सब हमें पता चल जाता है। तो हम सोचते हैं अब तो हम बस खुद से कर लेंगे सारा। तो दैट इज एक्चुअली अवर इग्नोरेंस। प्रोसेस का सब कुछ पता चल गया है, लेकिन किससे पता चला उसको भूल जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम ही चले, हमारा फिर जितना भावना है सब अपने आप जाने लग जाएगा।
और इसीलिए जो साधु होता है, हमें समझना चाहिए कि जैसे ये बताया गया है कि आता है इसमें भगवत गीता में, प्रभुपाद बोलते हैं जैसे अलग अलग जीव कोई दर्शन से, कोई देखकर वो पोषण करता है अपने बच्चों का, कोई सिर्फ ध्यान कर, जैसे कछुआ होता है वो अपने अंडे बाहर तट पे रखता है लेकिन ध्यान देता है नीचे से, और ध्यान करके ही वो अपने पालन कर देता है। कुछ स्पर्श से बच्चे का पालन कर देते हैं, कुछ दर्शन से देखकर, और जो डिवोटीज होते हैं, जो भक्त होते हैं, गुरुजन, वो आपको तीनों माध्यम से पालन कर सकते हैं। दर्शन से, आपको देखकर, और आपको आपके बारे में ध्यान देकर, आपका ध्यान करे कोई, और आपको स्पर्श करके। तो हमें इसीलिए, जैसे हम लोग मॉर्निंग में प्रोग्राम करते हैं, रोज़ चैंटिंग सेशन होते हैं, और हम लोग जैसे यहाँ पर हर शाम को भगवत गीता क्लास हो रही है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम प्रेजेंट हों, और जब भी मौका मिलता है हम सेंटर पे जाना चाहिए जहाँ पर मौका मिलता है। तो इससे क्या होगा, आप नज़र में आएंगे और आप ये शो कर रहे हैं कि यू आर सिंसियर। तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पालन करेंगे तो आप देखेंगे अपने आप ही आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी, क्योंकि हम महत कृपा से, हमारे ऊपर किसी गुरुजन का, वैष्णव की कृपा से आपकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगी। इसीलिए बुद्धि योग जो है वो भगवान या उनके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से हमको मिलता है, तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और आगे मैं आपको एक चीज़ इसमें और जो डिस्कशन है, तो प्रभुपाद बोलते हैं आगे, तात्पर्य बहुत बड़ा था इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो ये बोलते हैं कि अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धियोग की अवस्था प्राप्त कर पाता है। तो यही मैं कृपा की बात कर रहा हूं। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। और अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो इसमें एक बड़ा विशेष बात बताया गया है कि जो आप जब बुद्धि योग में स्थित होते हैं तो यू डिराइव प्लेजर। आप ऐसा नहीं है, प्रोसेस ही इतना मधुर है। जैसे कल हमने यहाँ पर रांची में प्रोग्राम किया था, तो उसमें एक प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए इतना बहुत सेवाएं हैं। तो मैंने आज सर्वात्मा प्रभु को बोला था कि राइट डाउन ऑल द सर्विसेज। तो बहुत लोग इन्वॉल्व थे उस पूरी सर्विसेज में, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग इनविटेशन, कॉलिंग करना, और लेकिन जब ये सब करने के दौरान आप देखेंगे सबको आनंद मिल रहा है। एवरीबडी इज फीलिंग सो हैप्पीनेस। और आप देखेंगे लास्ट में जब प्रोग्राम हुआ, लगभग
तो हर व्यक्ति जो भी उस प्रोग्राम में किसी तरह से भी इन्वॉल्व था, तो वो वास्तव में उसको आनंद आ रहा है। तो कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन भगवान की कर रहा है, गीता डिस्ट्रीब्यूशन, कोई प्रसाद ऑफरिंग कर रहा है, कोई प्रसाद को बांट रहा है, कोई सफाई की सेवा में लगा हुआ है। तो इस तरह से हर भक्त किसी न किसी रूप में वो पूरा सेवा कर रहा है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि बुद्धि योग वो आपको हर समय आनंद देगा। और एक चीज मैं जो फाइनल जो आपको बताऊंगा, एक बड़ा सुंदर, कल भी सुनाया था, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम एक्चुअली इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता कि भगवान हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा एक दो श्लोक बताऊंगा ताकि हमारे भगवान के प्रति अप्रिशिएशन बढ़े। कल मैंने उसको बनाया था, उसको शेयर करता हूँ आपसे। तो जैसे भगवान गीता में बोलते हैं गामा विश्व च भूतानि धारयामि हमोजसा पुष्णामि चौषधि शर्वः सोम भूत्वा रसात्मकः। भगवान एक्चुअली ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है, कैसे हम भगवान पे निर्भर हैं। हम बोलते हैं नहीं भगवान हम बुद्धि योग में करें, नहीं, जब तक हम गीता को, इन श्लोकों को समझेंगे नहीं कि कृष्ण कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि कैसे भगवान ही एक्चुअली सारे प्लैनेट्स को चला रहे हैं। कोई अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, सूर्य अपनी ऑर्बिट में, पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में चल रहा है, सबका अपना ऑर्बिट है, अपनी अपनी कक्षा में अपनी उसमें घूम रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये भगवान बोल रहे हैं मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। और देखिए हम एक सैटेलाइट आसमान में लगाने के लिए हजारों साइंटिस्ट नीचे काम कर रहे होते हैं। हाँ, और हम समझते नहीं है कि भगवान कितने एफर्टलेसली ऊपर आसमान में सब कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। जितनी भी वनस्पतियां उनका पोषण भगवान कर रहे हैं, और हम वही तो कर रहे हैं सुबह से शाम तक। सारे पेड़ से जो आउटपुट होता है वही तो हम ग्रहण कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं भगवान कैसे हमारा जीवन चला रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में क्या पाचन अग्नि वैश्वानर हूं, और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो आप देख रहे हैं, ये मैं क्यों आपको 2 श्लोक बताया कि कैसे डे टू डे लाइफ में हम भगवान पे निर्भर हैं। हाँ, हम सोचते नहीं पेट में कुछ एसिड निकलता है, कुछ रिएक्शन होता है और वो इसलिए सब पाचन हो जाता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर अग्नि नहीं है, जठराग्नि नहीं है, तो आपका पाचन नहीं होगा। तो 4 प्रकार के जो हैं वह पचा नहीं, तो इसलिए देखा जाता है जब जठराग्नि मंद हो जाती तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। तो हम कितने ज़्यादा निर्भर हैं हर भगवान पे। और ये पालन करता है में डिस्कशन हमारा है कि कैसे हर चीज़ हमें भगवान देते हैं, माता पिता, शिक्षा, बुद्धि, हर कुछ हमें दिया गया है। कुछ भी हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम चूज करके आते हैं, हर चीज़ दिया गया है। आपको आपका पालन कैसे होगा उसके लिए भगवान ने आपको एक माता पिता दे दिए हैं और उनके माध्यम से वो आपका पालन पोषण कर रहे हैं। तो कहीं पर भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का रोल नहीं है हमारे जीवन में। और जितना ज़्यादा हम भगवान को अपने जीवन में देख पाएंगे उतना ही आप बुद्धि योग में प्रबल तरीके से स्थित होंगे, नहीं तो हम शेक करेंगे। आज तो ऐसे ही जैसे, इसीलिए भगवान गीता के श्लोक में बताते हैं, बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बुद्धि योग कैसे भगवान बोले, बुधा बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो ये जब जान जाते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ भगवान के द्वारा ही आ रहा है, मेरा अस्तित्व, ये संसार का अस्तित्व सब कुछ भगवान से ही है,
तो वो फिर गलती नहीं करते हैं। हम इस संसार में, कल मैं प्रश्न पूछ रहा था ये सबसे कि आप लोग किससे जुड़ना चाहते हो, तो हर व्यक्ति, कोई बोलता है हम शक्तिशाली व्यक्ति से, फेमस व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, धनी व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं। कोई हम उससे जुड़ना चाहते हैं जो हमें समझता हो, जो हमारी भावनाओं को समझता हो। लेकिन इन सब को एक्चुअली देखा जाए, इन सब जो जो उन्होंने बताया, 15-20 लोगों ने अपने अपने सब बताए, वो सब गुण कृष्ण में ही है पूर्ण रूप से। और हम सब परफेक्ट, कोई पार्टनर परफेक्ट, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं परफेक्ट, लेकिन वो परफेक्शन आपको कृष्ण पे ही मिलेगी, भगवान में ही वो परफेक्शन है। जैसे परीक्षित महाराज, उनका नाम परीक्षित पड़ा क्योंकि वो भगवान को ढूंढ रहे थे हर चेहरे में। तो वैसे हम हर आत्मा वो उन्हीं प्रभु को ढूंढ रही है। हम हर रिश्ते में उन्हीं भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, और जब वो हमें नहीं मिलता है तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। तो भगवत गीता हमें वो दृष्टि देता है जिससे हम भगवान को सही जगह ढूंढना चालू करें, और उनको वास्तव में हमको वो दृष्टि मिल जाएगी कि हम उनको हर तरफ देखने लग जाएंगे। सृष्टि को देखकर हमें सृष्टा भगवान दिखने लग जाएंगे, उनका अनुभव कर पाएंगे हम। तो इसीलिए बहुत ही कम लोग होते हैं जो बुद्धिमान हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं कि मेरा अस्तित्व पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित है, तो हम फिर मिस्टेक नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं वो लोग फिर मिस्टेक नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हम ये गीता की क्लासेस कर रहे हैं सो दैट आप सब लोग बुद्धिमान बन जाएं। और बुद्धिमान बनने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ एक्शन न लें, एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आज एकादशी है, तो एकादशी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि आज आप अपने आप को भगवान से बहुत आसानी से जोड़ सकते हो। तो जो एकादशी फास्टिंग करते हैं, एकादशी में भगवान को ज़्यादा स्मरण करते हैं, उनका नाम ज़्यादा लेते हैं, तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा। देखो, बुद्धिमान उसी को बोला जाता है ना जो राइट टाइम में राइट एक्शन करे। तो एकादशी लाइक जैसे कोई ऑफर निकलता है कि भाई ऑफर सीमित समय तक, तो हर 15 दिन में एक ऑफर आता है भगवान के पास ज्यादा जाने का ऑफर, बुद्धि योग में सिचुएट करने का ऑफर। तो एकादशी इज सच एन अपॉर्चुनिटी। इसको गोविंद जननी बोला जाता है, आपको माधव तिथि बोला जाता है कि भगवान की भक्ति देने का आपको बहुत मिलेगा, बहुत इसमें स्पेशल कृपा मिलती है। एकादशी में आप कोई भी भगवान से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो आप सब गीता सुन रहे हैं, इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमें फास्टिंग करना चाहिए, वी शुड अवॉइड ग्रेन्स। हाँ, वैसे भी पेट को तो कम से कम 15 दिन में एक दिन तो हमें अन्न से दूर रखना चाहिए। ये मतलब फिजिकली भी अगर आप देखें तो नेचुरोपैथी या अलग अलग जो भी हेल्थ के हमारे लोग हैं वो ये बोलते हैं कि हम इसको फॉलो करें कि हम ग्रेन्स को अवॉइड करें 15 दिन में। तो इस तरह से आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सब आप फिट हो सकते हैं अगर आप एकादशी पालन करते हैं। तो बुद्धिमान लोग ये जानते हैं कि कैसे भगवान से जुड़ा जाए। हाँ, और हृदय से कहते हैं, भगवान बोल रहे हैं वो मेरी हृदय से एक्चुअली मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मैं आपको एंड करूँगा स्टोरी से, कल मैंने सुनाया था, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक राजा की स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ, और जिससे हमें एक बड़ा सुंदर मैसेज मिलेगा कि कैसे हम जस्ट वेट। तो मैं सुनाता हूँ। एक राजा की स्टोरी है। एक राजा की चार पत्नियां थीं, और वो अलग अलग पत्नी के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट था। जो चौथी जो उसकी पत्नी थी, तो उसको वो सबसे ज़्यादा स्नेह करता था। और जब वो
तो उसको वो क्या, उसको सब कुछ देता था, उसकी सारी जरूरतें पूरा करता था। सेकेंड जो उसकी थर्ड नंबर की जो पत्नी थी, उसको वो उसको भी बहुत ध्यान रखता था, और लेकिन उसको डर रहता था कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली जाए, तो उसको हमेशा एक डर था। दूसरे नंबर की जो पत्नी थी वो उससे सलाह लिया करता था, उसको बहुत उसकी केयर करता, उससे हमेशा जब भी दुख होता था तो उसके पास जाता था। और जो फर्स्ट नंबर की जो पत्नी थी उसकी वो जरा से भी कदर नहीं करता था, और मतलब उसको निगलेक्ट किया करता था, ध्यान नहीं देता था। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मिस्टर किंग हैं हमारे, उनका क्या हो गया, धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हो रही थी, बूढ़े हो गए थे। तो ये तो बूढ़े हो गए हैं और बीमार हो गए हैं, समय नज़दीक आ गया है। हाँ, बिना नोटिस के आता है ये हम सबका। मृत्यु का तो समय किसी को नहीं, असमय बोलते हैं, कभी समय नहीं होता, कभी भी हो सकता है। तो ये लेकिन इनके साथ धीरे धीरे हो गया, तो बीमार हो गए। अब इनको लग रहा है मैंने इतना सब कुछ किया, अब समय आ गया है जाने का, तो मैं जरा एक एक करके अपनी पत्नियों को बुलाता हूँ, कौन मेरे साथ चलने को तैयार होगा। तो तो मिस्टर किंग वो अपनी चौथे नंबर की पत्नी को बुलाते हैं, बोलते हैं देखो मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा कितना ध्यान रखा है, अब मेरा समय नज़दीक आ गया है, मैं अकेले तो नहीं जा सकता हूँ, तो कृपया तुम मेरे साथ चलो। तो ये सुनते ही चौथे नंबर वाली जो पत्नी थी तुरंत छोड़ के चली गई, बोला मैं नहीं जा सकती, और जगह छोड़ के चली गई। उसने तीसरे को बुलाया, तीसरे नंबर में जो थी वो उसने बोला मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ तुम जब चले जाओगे तो किसी और से मैं शादी कर लूंगी। ये जैसे सुना तो थंडर बोल्ट की तरह उसको लगा, इतना मेहनत करके इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए तुमने ये, तो वो बेचारा बहुत दुखी था। अब सोचा चलो दूसरे नंबर पे आसरा है, जिससे पास वो जाके सलाह लिया करता था। तो दूसरे नंबर को बुलाया पत्नी को, बोला देखो अब मेरा समय आ गया है, तो तुम तो मैंने तुमसे जब भी कोई दिक्कत होती थी तुम्हारे पास आता था, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरे साथ। तो बोली नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ एक काम मैं कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें मरने के बाद तुम्हारे को मैं चिता तक, शमशान घाट तक ले जा सकती हूँ, इतना काम मैं कर सकती हूँ। तो अब तो और ज्यादा उसको बोला, 3 ऑप्शन थे, तीनों गए, और तुरंत उसी समय आवाज आई मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं जाऊंगी। तो वो जो फर्स्ट नंबर वाली जो पत्नी थी वो उसके साथ जाने को करे, मैं जाऊंगी। और ये सुनकर जो राजा था वो इतना, उसका जो भावना था वो बिल्कुल बहुत दुखी हो गया। बोला बताओ मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया था, तुमने ही मेरा साथ दिया। तो इस तरह से अब प्रश्न यह आता है आप लोगों से कि चौथे नंबर की जो पत्नी थी, और ये एक्चुअली देखा जाए तो इसमें मैंने जैसे लिखा हुआ है कि ये हम सब की स्टोरी है, हम सब के जीवन में हम सब 4 पत्नियां हमारे पास हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि जो चौथे नंबर की जो पत्नी है वो कौन है। तो आप लोग हैंड रेस करेंगे तो मैं आप लोगों से लूंगा, हैंड रेस करिए आप, चौथे नंबर में कौन है। चलिए एक हाथ उठा है, तो हाँ शिवा माता जी ने, हाँ बोलिए माता जी, एक ही बताइएगा बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हमारी कॉन्शियसनेस, चौथे नंबर की पत्नी का बिहेवियर आपने देखा था, वो कह रही है मैं तुरंत चली गई, बिना कुछ बोले नहीं जाऊंगी, और तुरंत जगह छोड़ दिया। तो
तो चलिए देखते हैं। कॉन्शियसनेस माता जी, चेतना तो आत्मा से आती है, तो आत्मा अच्छा और चेतना का तो बिल्कुल बहुत गहरा संबंध है, छूट नहीं सकता है कभी भी। चलिए आगे अच्छा आते हैं। हाँ, ये मैं जब बात कर रहा हूँ वी ऑल हैव 4 वाइफ्स, इसका मतलब क्या है? आत्मा का हमेशा इन 4 लोगों से रहता है, तो वो मैं बोला। हाँ चलिए, और हमारे चिरंजीत प्रभु बोलेंगे। हाँ प्रभु जी, सुपर सोल ये तो नहीं लग रहा है, और बताइए, और कोई गेस? हाँ जग बताइए विनु अहंकार। माता जी। प्रभु जी, पैसा और मटेरियल पोजेशंस जो होती है हमारी। हम्म, अभी भी चौथे नंबर पे गड़बड़ हो गया है। अभी कौन है? हाँ, तो हमारा जो ये है क्या, शरीर, हमारा शरीर हमारा साथ तुरंत छोड़ देता है। और इस पे क्यों? क्योंकि हम पूरे जीवन ये इस पे ही सारा सब कुछ, टाइम, एफर्ट, लाइफ उसको बनाने में पूरा जीवन लगा देते हैं। और जैसे ही मेरी मृत्यु होती है, शरीर मेरा साथ तुरंत छोड़ देता है। तो ये हमारा ये 4th वाइफ। अब आते हैं 3rd वाइफ, जो बोली मैं तुरंत क्या कर लूंगी, मैं रीमैरी कर लूंगी, मैं तुरंत शादी दूसरे कर लूंगी। आप चलो आते हैं हम। गीतिका माता जी बताना चाह रही 3rd वाइफ के बारे में क्या? कौन है? प्रभु जी दोनों का नाम। हाँ, कौन है माता जी वो 3rd वाइफ हमारी? जी सेकंड का बता रही थी मैं तो, फैमिली और अभी 2nd पे आएंगे, अभी 3rd पे कर लेते हैं। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दोनों का नाम। हाँ, 3rd पे कौन है? हाँ, हाथ उठे ही हैं। हाँ, नीतू माता जी बताना चाह रही हैं। हाँ, 3rd पे उनका ये शरीर जो दूसरा वस्त्र वो वस्त्र बदल लेता है। नहीं, अभी तो इसी जन्म की बात हो रही है। तो और बताइए, और गेस करिए। श्याम किशोर जी हैं, वाह भाई। हाँ, हरे कृष्णा। हमारी इच्छाएं हैं जो बदलती रहती हैं। स्वागत है आपका। अचानक आए कि पहले से थे? बस अभी आपको ऐसे जूम खोला तो देखा आप थे, तो हमें इच्छा हुई कि भाई आप बहुत दिन बाद आपके वचन सुन रहे हैं। धन्यवाद आपको। तो जो हाँ बोलिए माता जी। जो वीनू माता जी ने बताया था हमारी मटेरियल पोजेशंस। हाँ, अभी माता जी चुप हैं, अभी सही था तो अब उसको नहीं बोला उन्होंने। जी तो हमारा सारा जो धन है और हमारे जो पोजेशंस हैं वो एक्चुअली आपके साथ, वो आपको जाते ही, आपकी मृत्यु के बाद ही किसी और के साथ हो जाएंगे। हाँ, तुरंत किसी और के पोजेशन बन जाएंगे। इसीलिए बोला गया रीमैरी कर लेंगे, वो तुरंत दूसरा विवाह कर लेंगे। कितना भी बड़ा आपका नाम हो, कितना भी आपको, सब किसी और को मिल जाएगा। आप देखिए पोजीशंस, वेल्थ, सब तुरंत। आप अगर मैनेजर हैं, किसी सीट पे बैठे हुए हैं, कोई और आके उस पे बैठ जाएगा। तो ये 3rd वाइफ। अब आते हैं 2nd वाइफ। दूसरा वाइफ वो जो हमें लेके जाएंगे, ठीक है? तो रिश्तेदार प्रभु जी, रिश्तेदार। माता जी से रहा नहीं गया। चलिए, तो रिश्तेदार और हमारे जितने भी नातेदार हैं, हमारे जो घर के परिजन हैं, वो हमारे 2nd नंबर वाले हैं। बिल्कुल सही माता जी, क्योंकि वो आपको वहां तक ही ले जा सकते हैं बस, ठीक है ना? तो अब आते हैं 1st नंबर पे। कौन है 1st नंबर पे? वो अपनी चेतना भक्ति प्रभु जी, हरे कृष्ण जो साथ हमेशा जाएगी। रुकिए, अभी रुकिए। ऐसे तो फिर तो पूरा, हाँ आप लोग बस हाथ उठा दिया करिए। तो हाँ, कौन बताएगा? तो हाँ, कुछ कर्म जाता है सर। क्या माता जी? धर्म। हमारे अच्छा प्रभु बताएंगे। चलिए
हाँ हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा प्रभु। और हाँ हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ हमारे साथ गॉड जाते हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा। भगवान हमारे साथ जाते हैं, सुपर सोल। तो इसीलिए ये हम यही तो लर्निंग है पूरे इसकी, सार यही है एक्चुअली, पूरा कहानी का सार यही है। सेकंड वाइफ तो हमारे वो हो गए, सार ये है। इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं पूरे जीवन, जो हमारा हर समय ध्यान रखते हैं, जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, उनको हम हर निग्लेक्ट करते रहते हैं। पावर, धन और आनंद के लिए उनको ही निग्लेक्ट कर देते, जो मेरा सबसे ज्यादा, वो फर्स्ट वाइफ है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम चा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवान कितना पास है हमारे, हाँ हृदय में है, हमारे पास है। उन्हीं से हमें ज्ञान, स्मृति, सब कुछ उन्हीं से मिल रहा है। तो ये है वो फर्स्ट वाइफ। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भगवान को निग्लेक्ट मत करिए। भगवान को आप निग्लेक्ट ना करें। ये नहीं कि भगवान से हमें सिर्फ कुछ क्षण के लिए जुड़ना है, उसके बाद टाटा बाय बाय, नहीं। कृष्णा, इसलिए जो बुद्धि योग जो आप आगे सीखने जा रहे हैं, वो उसका मतलब है आप उसमें हर समय स्थित हो सकते हैं। और इसके लिए हमें ये ह्यूमन लाइफ मिला है। तो आप निगलेक्ट ना करें अपना, और सीरियस हो जाएं, गंभीर हो जाएं। और जो तीन जो हमने बना रखे हैं अपने तीन पार्टनर्स, उनको एटलीस्ट आप ज़्यादा कदर ना करें। फोर्थ जो आपके साथ हैं उनकी कदर करें, और तब आप देखेंगे आपकी लाइफ सबलाइम हो जाएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं प्रभु विराम जी, देता हूँ। आप लोग प्रभु जी जो फर्स्ट वाइफ है उनके साथ भक्ति जाएगी, भगवान जाएंगे, या मतलब सब्टल बॉडी जाएगी? भगवान, मैं बात कर रहा हूँ सुपर सोल, वो हमारे साथ है, वो हर समय जी हमारे जी। साथ है, हमने उनको निगलेक्ट किया है। तो जैसे ही मृत्यु होती है, तो आपके साथ भगवान तो हर समय रहते हैं, आपके साथ हर शरीर में रहते हैं। जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ भगवान है। प्रभु जी जैसे तो कहते वो हैं कि किसी की डेथ होती है तो जो आत्मा है उसके साथ वाइटल एयर जाती है, मतलब जो 5 टाइप्स की एयर्स होती हैं, प्राण, अपान, उदान। तो प्रभु जी इसको क्या वो सब प्राण का शक्ति कोई बोलते वैल्यू हैं? नहीं है, वो सब क्या है, वो तो मैटर है। अच्छा अच्छा। हम ओके। यहाँ पर स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं। जाता तो फिर वो भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, हाँ जी हाँ लेकिन जी। वो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग गंभीर हो जाएं, कृष्ण सब भगवान आपके पास है, सबसे पास है, निगलेक्ट ना करें। कोई प्रश्न है आप लोगों का तो हम ले लेते हैं कुछ। और प्रभु जी लर्न गीता लिव गीता का जो आपका कोर्स है वो इंग्लिश में होगा, तो उसके बारे में इंग्लिश थोड़ा सा हिंदी दोनों में बताइएगा। है, हाँ जी। इंग्लिश हिंदी दोनों में। हाँ जी, तो और इंग्लिश का मुझे भी ज्वाइन करना था, तो आप बता दीजिएगा कि कैसे। learngita.livgita.com, ओके प्रभु जी, थैंक यू। learngita.livgita.com में जाएंगे तो आपको उसमें सारा डिटेल है। ठीक है, जी कुछ थैंक यू दिक्कत प्रभु जी। मुझे हरे बताइएगा। कृष्ण। आप उसको कोर्स करिए, दूसरों को फिर ट्रेन करिए, खुद सीखिए, उसको अच्छे से करिए। बहुत सिस्टमैटिक कोर्स है, कई हाँ लोग जी कर हाँ भी जी। चुके। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा और प्रभु जी। हाँ माता जी, और हमें हिंदी में करना होगा तो कैसे करना होगा? हाँ हिंदी हिंदी में ज्वाइन में करना है। सेम है वो कोर्स। जब आप वेबसाइट में जाएंगे तो जी वेबसाइट में हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन होगा। जी। तो आप जिस ऑप्शन को करेंगे तो उस कोर्स में उसमें कर सकते हैं, लैंग्वेज में। ठीक थैंक है। यू। हरे आप कृष्ण। कहाँ से बोल रहे हैं माता जी? यहीं देहरादून से। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो और किसी का कोई प्रश्न है कुछ चैट बॉक्स में? तो
Hare Krishna Prabhu, in teachings of Lord Chaitanya, it is written that one cannot simply go to Kalpurach and make demand. One must become devotee. Is it like Kalpurach don't fulfill desires of those who are not devotee? तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा प्रॉपर. One cannot simply go to Kalpurach and make demand. One must become devotee. It's like Kalpurach don't fulfill desires of those. पहली बात तो लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि कल्पवृक्ष होता भी है कुछ. जैसे भगवान का जो धाम है वो बताते हैं उसमें सब कुछ कल्पवृक्ष है. आप कुछ भी वृक्ष से, इस संसार में हम आम के पेड़ से आम मिलता है, हाँ, जामुन के पेड़ से जामुन. अगर आपको दोनों चाहिए तो एक ही पेड़ से मिल जाता है. जैसे कामधेनु गाय थी, उससे सब कुछ मिल जाता था. तो वैसे कल्पवृक्ष, वो पहली बात तो जो जिसका विश्वास नहीं है उस विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो इसलिए वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी हो सकता है वो नहीं उनको मिलेगा. अगर विश्वास है वो डिवोटीज को होगा, इसीलिए प्रभुपाद शायद बोल रहे हैं. और अभिमन्यु जी कह रहे हैं, प्रभु जी कैन एक्सप्लेन 4 लाख ह्यूमन स्पीसीज एज ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन. हाँ, एक्चुअली जब हम 4 तरह के मानव का, 4 तरह के मनुष्य की बात करते हैं तो उसमें जितने भी देवता हैं सबको अकाउंट कर लिया जाता है उसमें. तो सारे जितने भी मानव समाज है सबको ले लिया जाता है उसमें, मानव में आ जाते हैं. तो मनु से आता है मानव. तो ठीक है. और किसी कोई क्वेश्चन है तो सुशीला माता जी शांत बैठे हैं आप. आपका हरे कृष्णा. कृष्णा प्रभु जी. आपका कोर्स चल रहा है, कंप्लीट हो गया प्रभु जी? 6ठा शुरू करेंगे आज. और प्रभु जी 3 लेसनों के तो वो जो प्रश्न उत्तर थे और सब्जेक्ट वो सौरभ से भिजवा दिए थे मैंने. अच्छा, वो कर दिया आपने? ठीक है, ठीक. सौरभ से भिजवा दिए थे. और चौथे के रफली तो मैंने लिख लिए, अब वो पैर बना के फिर करूंगी अपलोड. अच्छा है. हाँ. कोई और किसी का कोई प्रश्न है तो हमारे साथ. अरे प्रभु जी वो सब्जेक्टिव वाले आप देख लेना एक बार. हाँ, वो कर लेंगे. आप अपना काम करें, हम अपना कर लेंगे. ठीक है प्रभु जी. ठीक है, तो हम लोग सेशन एंड करते हैं. आप लोग सब रेगुलर रहिए क्लास में. थैंक यू. क्या चिरंजीत प्रभु क्या पूछ रहे हैं? प्रभुपाद वाज टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ कृष्ण ने टोल्ड द लाइन दैट. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ प्रभु जी, कृष्ण भावनामृत में 9 दीक्षित जो होते हैं या जो गृहस्थ लोग हैं उनके नियत कर्मों का जो है गीता में वर्णन आया है. तो ये नियत कर्म क्या उनके होने चाहिए? हाँ, नियत कर्म का मतलब होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. मतलब जो शास्त्र के अनुमोदित जो कार्य होते हैं ना, उसी को करना, उसको बोलते हैं नियत कर्म. ये नहीं कि कुछ भी मनमानी कर लें. तो कोई भी मनुष्य जीवन मिला है तो उसको नियत कर्म, शास्त्र अनुमोदित कार्य करने चाहिए. तो इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये नहीं, धर्म के जो 4 स्तंभ इनको ध्यान में रख के करना चाहिए. तो कोई भी कार्य जो आपको भगवान, ऐसे नियत कर्म का मतलब होता है वो कर्म करने से आप भगवान से जुड़ोगे, दूर नहीं जाओगे. ठीक है ना? तो वो चाहे नवदीक्षित हो चाहे जो भी हो, सब कोई नियत कर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी चाहिए. जैसे एक देश का जो कानून होता है, देश का संविधान बताता है आपको ऐसे ऐसे करना है. कोई भी कार्य, कोई कंपनी अगर खोलते हैं तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बता देते हैं कि आपको ऐसे कंपनी चलानी है, ऐसा ऐसा कार्य करना है. तो ये सारा कुछ डिफाइन होता है. वैसे ही हमें क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ डिफाइन है. मनमानी नहीं कर सकते हैं. मनुष्य लाइफ में मनमानी नहीं चलेगी. वो पशु, जैसे आप देखेंगे ट्रैफिक नियम जो है वो जानवर पे नहीं लगता है. वो कैसे भी चले, उसको चालान काट दिया जाएगा. तो मनुष्य योनि पे आपको जब मनुष्य जन्म मिला है तो यू कैन नॉट एक्ट विंसिकली.
अपने मनमानी हम नहीं कर सकते। ठीक है ना श्याम जी? जी अभी आप कहाँ हैं? मैं इस समय तो वाराणसी में हूँ। तो रांची आ जाइए, फिर आप थोड़ा सा मिल लेते हैं आपसे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कृष्ण भावनामृत में हम यह मनुष्य जीव जो है भगवान का दास है, तो ये जो है जीव भी जो है एक तरीके से भगवान का अंश ही है। तो हमें जो है भगवान की जो कर्म करना चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो क्या जीवों का या मनुष्यों का की सेवा करना भी जो है कृष्ण भावना के अंतर्गत आता है? कृष्ण भावनामृत में हम किसी मनुष्यों की गरीब सेवा, की या किसी और अन्य जो है मनुष्यों की भी सेवा करते हैं, क्योंकि वो भी भगवान का अंश है। तो वो भी हमारी कृष्ण भावना मृत के अंतर्गत आता है ये बात। आप मनुष्यों की तो छोड़िए, भगवान तो गीता में बोल दिए हैं कि देवताओं की सेवा करना भी वो अविधि पूर्वकम है, मतलब विधि नहीं है वो। भगवान इसलिए बोलते हैं गीता में माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ, क्योंकि हम समझ नहीं रहे हैं। हमको समझ में आ जाना चाहिए कि सबका पालन भगवान ही कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान की संतुष्टि में सबकी संतुष्टि अपने आप निर्भर करती है। तो मानव सेवा माधव सेवा नहीं होती है। बहुत ये लोग एक कोई कोई बोलते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। और आप अगर वास्तव में मानव सेवा कर रहे हो तो फिर सब मानवों की सेवा कर सकते हो क्या? अरे भगवान हर जीव का ध्यान दे रहे हैं। तो ये हमारी सोच गलत है कि हम भगवान को निग्लेक्ट कर देते हैं मानव के चक्कर में। अरे हमारा पहले तो अपने को देखना है। हमारी पहली बात तो हम मानव सेवा करके कभी आप अपने आप को इतना शांति नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा कनेक्शन भगवान से, तो हम भगवान के अंश हैं। तो वो हाँ, ये अलग बात है कि आप जब किसी को कुछ देते हो तो आपके अंदर एक डिटैचमेंट, आपकी शुद्धिकरण होता है, क्योंकि आप अपने फल को दे रहे हो। बट आप फल को किसको दे रहे हो ये बहुत मैटर करता है। इसलिए गीता में बताया गया है कि आप जो दान देते हो किसी को, तो वो किन गुण पे किसको देते हो, कहाँ देते हो, ये सब मैटर करता है। सतोगुण में है, तमोगुण में है, रजोगुण में। तो जब हम कुछ रिटर्न के लिए करना चाहते हैं तो वो रजोगुण का प्रतीक होता है। तो जब आप किसी गलत को देते हो तो वो तमोगुण का प्रतीक होता है। तो इस तरह से अलग अलग विधि दी गई है, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो आप अगर वास्तव में रिटर्न बहुत चाहते हो अपने उसका, तो अगर आपको किसी को सेवा करना है, अगर आपको किसी को भूखे को खिलाना है, तो उसको आप कृष्ण भावनामृत कर दो, आप उसको प्रसाद खिलाओ, तो आप उसकी वास्तव में उसकी मदद कर रहे हो। वरना आप किसी के शरीर की मदद करके कोई मदद नहीं कर रहे हो। क्या मदद कर रहे हो? आप उसकी टी शर्ट को बचा रहे हो। आदमी तो बह गया बेचारा पानी में। तो इसीलिए मदद असली वही है जो आत्मा की जाए, ना कि शरीर की। तो अगर आप किसी की वास्तव मदद करना चाहते हो, उसे आप प्रसाद दो, भगवान का नाम दो, गीता दो। आप देखोगे उसको आप भगवान का सहारा दे रहे हो, तो वो उसकी इटर्नल, आप उसकी इस जन्म में नहीं, अगर उसको आगे जितने भी जन्म मिल रहे हैं ना, वो उसका भला हो जाएगा। ठीक है ना? तो शरीर का ध्यान से ज्यादा है आत्मा का ध्यान दिया जाए। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। अब करते रहिए आप। जी जी जी। हाँ, ज्यादा नहीं, किताब वगैरह पढ़ता रहता हूँ। देखिए किताब रखी है आपकी साथ में, किताब ही लेके आया हूँ कुछ जो वहां से, वही साथ में चल रही है। हाँ, पढ़ते वही रहिए। समय काट रही है हमारा। नाम जरूर लेते जाइए। आप गंगा के किनारे हैं, हाँ तो जी जी। गंगा दर्शन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो रहा है दर्शन। स्नान भी करिए। ठीक है? नहीं, स्नान तो नहीं हो पाता, बस दर्शन ही, दर्शनार्थ मुक्ति के चाह रहे हैं। नहीं, कभी कभी स्नान भी करिए। हाँ, निर्मला माता जी कुछ पूछ रही हैं आप? नहीं, हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, फिर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रमाण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।